झूठे आरोपों की विदेश मंत्रालय ने उधेड़ी पखियां। भारत ने ट्रूडो को जमकर सुनाया, ट्रूडो के षड्यंत्र का किया पर्दाफाश। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले ट्रूडो की अब खैर नहीं। भारत पर बगैर किसी सबूत के आरोपों की बौछार करने वाले और खालिस्तानियों का खुलकर समर्थन करने वाले कनाडा को अब भारत ने चुन चुन कर जवाब दिया है। चाहे वो हमारे देश के राजनयिकों पर आरोप लगाने की बात हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का समर्थन करने का आरोप भारत पर लगाने की बात हो, भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो सरकार का असली चेहरा अब दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कनाडा के इन आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए ये कहा कि कनाडा ने भारत के राजनयिकों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने अपने राजनयिकों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें वापस भारत बुलाया है, ना कि कनाडा ने उन्हें निकाला है। वो सिर्फ आरोप लगाते हैं, सबूत नहीं देते हैं, यानी ट्रूडो ने कोई सबूत नहीं दिया है। We have made our position very clear on this particular matter. You would have seen that several press releases have been issued in the last 2 days, putting out our position, which we are very clear that since September of 2023, the Canadian government has not shared any shred of information with us. Yesterday, again, after the public inquiry, public hearing, we had again issued a statement saying that Canada has leveled serious allegations but has so far not given any evidence to back it up. Regarding your question on the comments made, I would allude to the comments made by the State Department. We would say that as far as the allegations are concerned, PM Trudeau's own admission yesterday would indicate the value. As regards our stance on the allegations, we will naturally reject false imputations against our diplomats. Regarding a question, you would have seen we had summoned the Acting High Commissioner of Canada, and thereafter conveyed that we had no faith that the Canadian government will look after the safety of our diplomats, and therefore we had taken a decision to withdraw our High Commissioner and along with him 5 other diplomats. Subsequent to that, we saw that there was a communication from the Canadian side asking them to leave, but we had withdrawn our diplomats before their decision. On your question as to where we see this particular relationship going, well, to tell you very frankly, India-Canada ties, economic ties are very strong and vibrant. We have a lot of Canadian pension funds who are invested here. We have a large Indian diaspora in Canada, which is the bridge through which we maintain very strong people-to-people links with Canada. We have a large, possibly the largest cohort of international students in Canada as well. We hope, this particular crisis has been precipitated by Trudeau government's baseless allegations. We hope, so that is how we look at the issue that you raised, how we see the relationship going forward. And let me tell you also, Canada is a major beneficiary of all these linkages, strong linkages that we have. सिर्फ इतना ही नहीं, कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के मुद्दे पर न सिर्फ राजनयिकों पर आरोप लगाए, बल्कि ये आरोप भी लगाया कि दरअसल जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो दरअसल भारत उसका मदद ले रहा है और इस तरीके से यहाँ पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब देते हुए ये कहा कि हमने कनाडा से कई बार अनुरोध किया
था, जिसमें दरअसल उनसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों को गिरफ्तार करने तक की मांग हमने की थी। यानी जो उसके सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जो लोग कनाडा में रह रहे हैं, दरअसल उनको गिरफ्तार करने की मांग हम कर चुके हैं, लेकिन कनाडा ने हमारी चिंताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, यह साफ तौर पर विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर जो आरोप कनाडा भारत पर मढ़ रहा है, उसको लेकर किस तरीके से भारतीय विदेश मंत्रालय का मुंहतोड़ जवाब कनाडा को मिला है, जरा सुनिए। Take safety of our peacekeepers very seriously, and we had called for that all action must be taken for the maintenance of the safety of UNIFIL premises and so on and so forth. We have also called for, as I told you, safety of our peacekeepers. There were some reports about some skin rashes, some people getting the peacekeepers who were impacted getting some skin rashes, etc. On that, UNIFIL has issued a statement. They have not shared any report with us, but to let you know that in that particular zone we didn't have any of our Indian troops, but we continue to call for safety of our troops. Ayushi, regarding a question on the comments made by several countries, I would like to say that, we have made our position very clear on this particular matter. You would have seen that several press releases have been issued in the last 2 days. We also see there is a pattern. The pattern is motivated by political considerations on the part of the Canadian Trudeau government, and there is also, as we have said, there is a clear pattern to smear India for reasons best known to them. I would also like to tell you that please look at several of these statements. That it's a very detailed statements that we've released, giving exactly what our position is, why we think that these are politically motivated, and why we think that these allegations are baseless. प्रत्यर्पण को लेके मैंने बताया जैसे कि 26 एक्सट्रेडिशन केसेस पेंडिंग हैं। उन 26 के अलावे प्रोविजनल अरेस्ट की इंफॉर्मेशन जो हम लोग म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत मांगते हैं, उसमें भी कई एक सारे मामले वहां पर कनाडा में पेंडिंग है। और जैसा कि मैंने बताया कि 5 लोग, अपराधी लोग जो जिनके खिलाफ हम लोगों ने मांगा है, भगौड़े हैं, मांगा है कि इनका एक्सट्रेडिशन होना चाहिए, प्रत्यर्पण होना चाहिए। उनका नाम मैंने लिया आपके लिए: गुरजीत सिंह, गुरजिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, लखबीर सिंह लंडा और अर्शदीप सिंह गिल। इसमें से वो भी लोग हैं जो ये जो गैंग्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो अथवा कोई और गैंग है, उसके भी मेंबर्स इसमें शामिल हैं। तो सब जानते हैं कि कनाडा में चुनाव है आने वाले वक्त में, और इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। और यही वजह है कि वो हर एक हथकंडा वो अपना रहे हैं जिससे कि वहां पर दरअसल एक सिख जो वोट बैंक है उसको दरअसल हासिल किया जाए। और इसको लेकर वो खालिस्तानियों का समर्थन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि एक के बाद एक न सिर्फ ट्रूडो आरोप लगाया बल्कि वहां के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया। उसके बाद वहां की पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम घसीटती है, एनएसए अजीत डोभाल पर आरोप लगाती है। यहां तक कि भारत की जो खुफिया एजेंसी है उस पर आरोप मढ़े जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद से निज्जर की हत्या की गई, इस तरीके के आरोप। वहां पर जो है सिख फॉर जस्टिस के जो पन्नू हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, इस तरीके के आरोप। लेकिन अब इन तमाम आरोपों पर जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तमाम सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने बीते कुछ दिनों में कनाडा को लेकर एक के बाद एक कई प्रेस रिलीज जारी की हैं। हमने सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया है और उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है कि जस्टिन ट्रूडो ने सबूत पेश नहीं किए, वो बगैर सबूतों के हम पर ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब कनाडा को हर एक उस आरोप का जवाब मिलेगा जो उसने भारत पर लगाए हैं। ये साफ तौर पर भारत की तरफ से कहा जा रहा है
और जाहिर तौर पर विदेश मंत्रालय ने जस्टिन ट्रूडो के उस कबूलनामे पर भी वार किया जिसमें कनाडाई प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भारत के साथ निजर मामले में सिर्फ खुफिया जानकारी साझा की गई, ना कि कोई ठोस सबूत। तो इसको लेकर भी वो कनाडा के प्रधानमंत्री पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि हमने इस खास मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ रखी है। आपने पिछले 2 दिन में तमाम प्रेस रिलीज देखी होंगी जिनमें हमने ये कहा कि सितंबर 2023 के बाद से कनाडा ने सितंबर 2023 के बाद से कनाडा ने हमने कोई जानकारी साझा ही नहीं की है, ये स्पष्ट कर दिया गया है भारत की ओर से। यानी कनाडा जो आरोप लगा रहा है, वहां की पुलिस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वहां के विदेश मंत्री जिस तरीके के आरोप भारत पर लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और किस तरीके से भारत के राजनयिकों को वहां पर टारगेट किया गया वो तस्वीरें तो हमने सोशल मीडिया पर देखी, जहां पर भारत के राजनयिक की जो तस्वीर थी उसे गोलियों से छलनी किया जा रहा है। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि कनाडा में हमारे राजनयिक सुरक्षित नहीं थे। इसलिए विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि हमने अपने राजनयिक को वापस बुलाने का फैसला किया और इसी के साथ जो 4 और राजनयिक थे उन्हें भी हमने वापस बुलाया है, क्योंकि सुरक्षा का ख्याल हम उनकी रखेंगे और इसलिए ही हमने उन्हें वापस बुलाया है। तो ये साफ तौर पर तमाम जवाब हैं जो भारत की ओर से दिए गए हैं, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर किस तरीके से ये पूरा मामला जो है आगे बढ़ता है। अब कनाडा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस पर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भले ही कनाडा अमेरिका के इशारे पर यह कर रहा हो या दुनिया के किसी भी देश के इशारे पर यह कर रहा हो, लेकिन भारत का जो रुख है वो स्पष्ट है कि भारत किसी भी अलगाववादी ताकत, किसी भी आतंकी ताकत का समर्थन नहीं करता है। खालिस्तानी हो चाहे वो अलग अलग आतंकी संगठन के जो कहीं ना कहीं आतंकवादी है वो हो, भारत किसी का समर्थन नहीं करता है। और भारत की ये जो रुख है ये जारी रहेगा आतंक के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ। ये कहीं ना कहीं साफ और स्पष्ट शब्दों में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत के विदेश मंत्रालय ने समझा दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।